Hello everyone. I welcome you all to our another episode of WOW series, that is Words of Wisdom, conducted by CA students, wherein we invite distinguished chartered accountants from various fields and verticals to share their journey and wisdom with us. But before we begin, let me take a moment to talk about TWC, the Winner's Circle. It is a vibrant community of CA students that strives to create a space for learning, networking, and growth. As our tagline beautifully says, from peers to professionals, we are committed to serving our profession, not just for days, but for decades to come. We have also started with our very first project, Anthology, named Education, wherein CA aspirants across the country will be participating and will get the opportunity to get published in our own anthology. So make sure that you all are connected on all our social media platforms. And now we are truly fortunate to have with us someone who has inspired thousands with her journey and work, CA Neha Datta ma'am. She is not only a chartered accountant but also a mentor who has guided more than 10,000 CA aspirants. She began her career with PwC and later with Unacademy and has even worked as content writer. Her journey and energy have inspired a massive online community. She is an influencer with 1.5 lakh plus followers and YouTube creator with more than 4.5 lakh subscribers. Passionately dedicated to student well-being, she focuses on guiding students from mental clutter to inner clarity, helping them not only in academics but also in life. Ma'am, we are truly honored to have you with us today as a part of our WOW series. Thank you so much for being here today. Now, I would like our TWC members to take it further with the interview questions. Thank you. Thank you so much, Yashvi, for such a wonderful introduction of ma'am. I hope we all are good to go. So, ma'am, before we begin into some serious talk, I want to ask you that how do you define success and how has that definition changed for you over the years? Okay, so first of all, thank you so much for having me here and a lovely introduction. Truly glad and blessed to be part of the community. So moving towards your question, what is success for me? So success का definition सबके लिए change होता रहता है eventually. So when we are in CPT, our aim of success is just to clear the intermediate and get the articleship. That's it. And when we get that, so all we just want to achieve is to clear our CA final exams. So the same was the case with me. और जैसे ही CA बने तो उसके बाद just एक Big Four का title मुझे चाहिए, then I'll be successful. तो वहां तक वही चला जो सबका normal चलता है. That was exactly the case with me. But when I got all जो मुझे जब तक मैं aim कर रही थी, and then I thought I'm still not feeling my best. When I'm working in the job, I'm still feeling that am I being forced to do this? और क्या मैं अपनी पूरी लाइफ ये करना चाहूंगी? So the answer from within came no. मुझे मजा नहीं आ रहा था उसमें. Then I realized that success for me was not what I was chasing throughout. और जितना हम अपने दिमाग से सोच पाते हैं उस समय जब जहां पर होते हैं, तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए सक्सेस नहीं है. Then over the period of time in last 3 years, I defined what success for me is able to do what I want to do, what I truly love doing, and catering to the people. That is what I truly love and enjoy, and working from anywhere, of course, the freedom to travel while working. So all this I wanted. So all in all, doing something what you truly enjoy and feel like doing is success for me now. Truly inspiring, ma'am. It makes me curious to know more. So my next question is, what are the mindfulness practices that you follow in your daily life and how can we as a CA aspirant inculcate the same? Okay, so we as a CA aspirant, mindfulness chodo, rather, and our mind is all the time full with all the information, all the curriculum related information, all the overthinking, what will happen, will this happen or not, will I study well or not, how my answer sheets are going to be checked. So our mind is all the time full. So then I realized in my CA final journey that I want to be able to perform well with this mindful. So I need to be mindful now. So the basic practices I started introducing in my daily routine, in my study routine schedule was first being present in the moment. So the simplest of practices I started doing was if I'm studying, I used to take 5 minutes break after studying for 1 hour.
5 minutes break in which all I'm doing is just keeping my phone aside, putting a timer and keeping phone aside and doing the deep breathing, so that my mind can digest what all I was studying from last 1 hour. रादर व्हाट वी डू इज कि अगर हम घर में पढ़ाई करते हैं या फिर लाइब्रेरी में भी करते हैं, हम एक जगह बैठते हैं, सोचते हैं हम सुबह आए, बैठे, एक आध बार जो बीच में ब्रेक लिया वो लिया, और सिर्फ अब हमें शाम को या रात को घर वापस जाना है, पर हमें भूल जाते हैं कि दिमाग, मतलब इफ वी आर ओनली ईटिंग ईटिंग एंड ईटिंग एंड नॉट कीपिंग अ चेक इफ आवर स्टमक इज डाइजेस्टिंग इट और नॉट, तो क्या होगा उससे? आवर हेल्थ विल नॉट बी अप टू द मार्क. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग विद आवर ब्रेन. तो वो मुझे लगा कि अगर इफ आफ्टर एवरी आवर आई कीप अ चेक what my mind is thinking, how I'm feeling, I'll be in a better position to retain what I'm learning. So this was a game changer for me, a basic practice. वरना मैं पढ़ने बैठती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि 2 घंटे निकल गए और मैं ये एक पेज पर कैसे हूँ, और मैंने 2 घंटे की क्लास देख ली 2x पे करके, और अब वो 3 घंटे की कैसे हो गई है. आई वॉज नॉट इवन, मैथ्स वॉज नॉट मैथिंग विद मी कि ये हो कैसे रहा है ऐसा. एंड ऑल दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ क्लटर. I am studying something, but at the same time, I'm living in my own overthinking world also. So this was a basic practice जो हम deep breathing every 1 hour introduce कर सकते हैं. And the second is just knowing how I'm feeling. If someday you're not feeling like studying, don't force yourself too much. Instead, ask why I'm feeling this way. Am I feeling worried about कि the syllabus is too much, I won't be able to complete? क्या मुझे इसकी वजह से stress हो रहा है? या मैं एग्जाम में कल क्या होगा या 2 महीने बाद क्या होगा, क्या मैं इसकी वजह से स्ट्रेस ले रही हूँ? और फिर उसके हिसाब से खुद को समझाओ, या फिर मेरे चैनल की वीडियो भी देख सकते हो. बट फॉर दैट यू नीड टू एक्नॉलेज what's going within and what's going in instead of forcing yourself to sit and study. क्योंकि फिर आप सिर्फ बैठे हो 4-5 घंटे और आप नहीं पढ़ रहे हो. So just keeping a check on what's happening here and what's happening here, you'll be in a better position to study well and retain well. Okay, that was actually inspiring and motivating to us, ma'am. But moving on, like connecting this only, after that you inspire and motivate so many students. Where do you go when you need inspiration or motivation? Okay, so back then I always used to go to my mom. So now I am being a mentor to a lot of people, but back then my mom was a great mentor to me. We as kids, we feel my parents won't understand. आप नहीं समझोगे मेरे को क्या स्ट्रेस है, आप नहीं समझोगे सीए का कितना स्ट्रेस होता है. I agree. They won't understand maybe your CA curriculum. They won't understand the stress you're going through, but they'll definitely understand you. So try finding somebody in your family. That's the first thing you can go. Maybe you can talk to your mom. Maybe आपकी mom थोड़ी strict हो तो आप dad से बात कर सकते हैं. दोनों ही strict है तो आपका कोई sibling हो सकता है, वरना कोई friend हो सकता है. So there must be one person. Usually what we do is कि एक तो हमारा course ऐसा है जहां पर there is no college, so we don't go out. All we do, और जब classes भी खत्म हो गई हैं हमारी, तो अब हमारा human connection बिल्कुल भी नहीं है. There is no social circle now. हमें ये लगता है कि इट्स ओके टू बी लाइक दैट, पर वो चीज हमें जब 2 महीने लास्ट के बचे हैं या सिर्फ 1 महीना बचा है, आपको वो अकेलापन इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट करता जाता है. क्योंकि आफ्टर ऑल कितना भी हम सीए स्टूडेंट हैं, हमें तो अकेले रहना है, अकेले पढ़ना है, हम कितना भी खेलें, बट कभी तो चाहिए होगा ना कोई एक ह्यूमन जिससे हम बात करें और वो हमारी बात समझे. तो वो मुझे लगा मेरी जर्नी में उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प करी. दैट मुझे कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, मतलब पेपर से 1 दिन पहले भी इतना स्ट्रेस हो रहा है रात को, सो आई जस्ट वेंट टू माई मॉम और उन्हें समझाया कि मैंने ऐसे ऐसे इतना इतना पढ़ा है, ऐसे ऐसे करा है, अब मैं क्या करूं. एंड आई यूज्ड टू टॉक टू हर एंड शी यूज्ड टू गाइड मी टुवर्ड्स द गॉड, कि मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठ जा, बोल दे जो भी कहना है एंड यू विल फील बेटर. दैट्स हाउ शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डिवाइन पावर. सो आई नेवर फेल्ट अलोन इन माई जर्नी. जब मैं जिस अटेम्प्ट में एक्चुअली क्लियर करा, उसमें अगर मैं इंटरनली बताऊं हाउ आई वाज फीलिंग, आई वाज नॉट फीलिंग अलोन, क्योंकि मुझे लगता था मैंने अपना बेस्ट दिया, पढ़ लिया है. सो नाउ डिवाइन हैज सॉ मी स्टडिंग, प्रिपेयरिंग, राइटिंग एग्जाम. So definitely divine will help me out with in clearing the exams. So there was a mental satisfaction and mental peace ki I did my part. Now what's beyond my control is over to divine. So that's how I used to find my motivation all the time. Okay, so ma'am, we just spoke about peace and divine motivation. So my next question is, how do you balance ambition and with inner peace? एम्बिशन कई बार हम बाहर से देखकर बनाते हैं.
किसी दूसरे को देखकर। और अपनी जर्नी में बाद में मैंने समझा कि मेरा मे बी द गोल विच आई सेट फॉर माई सेल्फ क्लियरिंग द सीए एग्जाम्स वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि हम जब छोटे होते हैं, हमारी फैमिली में कोई तो कर रहा होता है सीए, और हमें उसका पता चलता है कि वो सीए कर रहा है, एंड दिस मच मनी दे आर मेकिंग, दिस मच रिस्पेक्ट दे आर गेटिंग इन द सोसाइटी, तो वहां से हमें इंस्पिरेशन आता है। पर हम इतने यंग होते हैं कि हम खुद से वी नेवर आस्क आवरसेल्व्स कि इज इट समथिंग रियली आई वांट टू अकम्प्लिश और नॉट। तो जब हम अपने ऐसे इस तरह के एम्बिशन सेट करते हैं, कोई भी एम्बिशन हो सकता है वो, तो जब हम ऐसे गोल्स या ऐसा एम्बिशन सेट करते हैं जो एक्सटर्नल उससे आ रहा है, अंदर से हम वो शायद नहीं करना चाहते हैं, सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट यू आर एमिंग फॉर समथिंग and then you're not feeling peaceful with it. So that's why I felt lot of contradiction throughout my journey, क्योंकि मैंने समझा बाद में कि मैं ओवर द स्कूल में मैं ऐसी स्टूडेंट थी नहीं जिसको पढ़ना बहुत पसंद है। हाउ कम आई एंड अप इन सीए कोर्स जहां सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। सो वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे कर दिया मैंने। बट वो तो मैं गोल सेट कर चुकी थी, पर उसको पीस के साथ जब सेट करना था तो मैंने उसको ऐसे लिंक किया कि अब ठीक है, अब ये मेरा एम्बिशन है, एंड मे बी मैं अंदर से वो नहीं करना चाहती थी। नाउ व्हाट, अब कुछ तो करना है ना। आई कैन ईदर क्विट इट इन बिटवीन और आई कैन क्लियर इट। अब मैं क्विट करूंगी तो यहाँ से कहाँ जाऊंगी मुझे नहीं पता है। फाइनल तक आके एक ग्रुप करके, या अगर फाइनल के 2 ग्रुप भी बचे तो स्टिल मैं सीपीटी करके आई हूँ, आईपीसीसी आर्टिकलशिप करके आई हूँ, तो उसको छोड़ना बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे लिए फिर ये ऑप्शन था। उसको मैंने लिंक ऐसे किया कि मे बी आई डू समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, और शायद ये रास्ता कुड बी सीए। सो साइड बाय साइड आई स्टार्टेड राइटिंग ओवर लिंक्डइन। वहां पे जब मैं लोगों से कनेक्ट किया, मैंने लिखना शुरू किया अपने डेली थॉट्स में, वहां पढ़ती थी कि मैं क्या लिख रही हूँ। जो मैं उस समय मोटिवेशनल सुनना चाहती थी वो मैं लिख देती थी दूसरों के लिए, ताकि हम म्यूचुअली मोटिवेटेड फील करें। तो ये करके फिर मुझे लगा कि ओके, शेयरिंग माई व्यूज विद समबडी मेक्स मी फील रियली ग्रेट। So if I clear my exams, I'll be an authentic and reliable person to be a mentor of people. तो मैंने फिर अपने एम्बिशन को यहां से कनेक्ट करा, and this ambition was coming from within. So it gave me peace, and I felt motivated to actually study and clear the exams. Mom, I really like the way how you linked everything, now starting from ambition to inner peace and how it made you feel you. So, ma'am, since we have started this TWC platform with the purpose of serving the students, like you said that you felt like you could mentor people good. So we also started with a purpose of serving the students and providing them a platform where they can express their views. So, what was your why? Matlab, like you mentioned. So, what was exactly your why when you began the content creation journey? Because during my journey, I felt that I'm not being guided well, because we had teachers back then, subject specific teachers. They were guiding you really well based on the subjects, or maybe like if I talk about BB sir, I was taking his DT classes, and all apart from studying DT, all I used to wait of the last 5 minutes motivation that he'll give after the class. So we all used to wait कि अब तो सर कुछ बढ़िया मोटिवेशन देंगे। तो वो बहुत अच्छा होता था, पर वो सिर्फ 5 मिनट का होता था, और कोई ऐसा स्पेसिफिक मुझे नहीं जगह दिखती थी जहां पर कोई ये समझ पाए कि इफ somebody is not able to clear the CA exams, it's not because they were not studying. It's not because they didn't perform well. उन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी. So you can't differentiate कि जिसके 201 आए 400 में से उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, और जिसके 199 आए वो उसने कुछ नहीं पढ़ाई करी थी. ऐसा नहीं होता है. So all I was looking for somebody to validate me on this and acknowledge कि मैंने भी अच्छी पढ़ाई करी थी, बस मेरे 2 ही नंबर तो कम थे ना, और उसके 2 ही नंबर ज्यादा थे. तो वो स्मार्ट और मैं डम नहीं हो सकती. पर हमें ये कोई बता नहीं रहा था जर्नी में. सो ऑल आई यूज टू फील इज रियली बैड कि जब पास हो रहा है तो लिंक्डइन पूरा भरा हुआ है पास वाली मार्कशीट से, पर जो कोई फेल हो रहा है वो बेचारा सोच रहा है कि आई एम दी ओनली वन हु कुडंट मेक इट. क्योंकि अगर 50 बच्चे भी पास हुए तो आपको लिंक्डइन ओपन करते ही वो 50 मार्कशीट पास वाली दिख रही है, और आपको लगेगा कि एक बच्चा फेल हुआ है, सिर्फ वो 99% कीटाणु जो होते हैं उनमें एक कीटाणु बच गए, वो मैं हूँ, बाकी सब लोग पास हो गए हैं. सो आई रियली यूज टू फील लाइक दिस, एंड आई यूज टू डिस्गस्ट ऑन माई सेल्फ कि हाउ कुडंट आई क्लियर इट, जबकि मेरे आसपास सबका क्लियर हो गया. इंस्टा पे आप देख रहे हो लोग केक काट रहे हैं, सब पास हो गए हैं.
तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। बट मैंने जब लिखना थोड़ा थोड़ा लिंक्डइन पे शुरू किया, वहां जब मैंने अपनी फेल वाली मार्कशीट शेयर करी, तो उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स थे, इवन वे मोर देन जो मैं पास की मार्कशीट देख रही थी। फिर मेरे डीएम में भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आपने करेज दिखाया, आपने अपनी फेल वाली मार्कशीट डाल दी। उसके बाद से वो ट्रेंड शुरू हुआ है कि पीपल पुट देयर फेल वाली मार्कशीट ऑल्सो। तो वो मुझे लगा कि कोई हमारे मन की बात नहीं कर रहा है यार, कोई पास नहीं हो पा रहा। ज्यादातर पॉपुलेशन सीए में ऐसी ही है जो रिपीट करते हैं। दे आर वेरी रेयर एंड वेरी फ्यू पीपल हु क्लियर इन द वन को, और जिनका रैंक आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे पहले तक सिर्फ रैंक होल्डर का इंटरव्यू होता था, मेरे अटेम्प्ट से पहले वाले अटेम्प्ट तक। उसके बाद मुझे लगा कि वाई कांट आई ओन माई अटेम्प्ट्स। तो मुझे मेरा वाई ये था कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, टू प्रेजेंट द पीपल, जो मेजर क्राउड है यहाँ पर जो रिपीट करता है। तो हाँ, लग गए हमें अटेम्प्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ है, हम भी इक्वली स्मार्ट हैं, और हमें थोड़ा सा 1-2 साल और दो, मे बी वील परफॉर्म वे बेटर देन हु क्लियर्ड इन द वन गो, अगर आप लॉन्ग टर्म में लाइफ में देखोगे तो। So I wanted to represent those 90% people who reappear in the exam. Thank you so much, ma'am, for explaining it so clearly. So this perspective really opens up another question I had in mind, that you always mention emotional intelligence as one of the most powerful tools. So how has it changed your approach towards people and lives? ओके, तो क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन करा कि हमारा सीए स्टूडेंट की लाइफ में हमारा कोई कॉलेज तो होता नहीं है, तो हमें मतलब हम खुद ही को नहीं समझ पा रहे हैं इतना अकेले बैठ के। बाहर इंटरेक्शन हमारा कितना है कि हम क्लास में जा रहे हैं, अब तो वो भी बहुत लोग ऑनलाइन ही देख लेते हैं, अकेले बैठ के घर पे पेन ड्राइव क्लास या वो देख लिया, बस खत्म बात। और ज्यादा से ज्यादा ऑफिस जा रहे हैं जहां पर आप ज्यादा टाइम काम कर रहे हैं, बिजी सीजन है अभी, ऐसा है वैसा है, वही चलता रहता है। तो वहां पे भी इंटरेक्शन बहुत कम है। और दो सीए स्टूडेंट साथ में बैठ के जब बात करते हैं, ऑल दे टॉक अबाउट इज अमेंडमेंट्स कितनी आ गई हैं, अटेम्प्ट कब है, ये पढ़ा क्या तूने, वो पढ़ा क्या, मेरा इतना हो गया, टाइम टेबल क्या है। उनका डिस्कशन का सारा पॉइंट ही यही है। सो दे आर नॉट टॉकिंग टू एक्चुअली टॉक, ऑल दे आर डूइंग इज जस्ट डिस्कसिंग कि उनके उनके सीए की जर्नी में क्या चल रहा है और हमारी में क्या चल रहा है। तो हमारा लाइफ की बात हम बहुत कम करते हैं, हम खुद को जानने की बात बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम सारा टाइम फोकस कर रहे थे इंटेलेक्चुअल वाला इंटेलिजेंस पे, इंटेलेक्ट पे बात कर रहे थे। बट अगर आप क्लोजली देखो या आपने फील किया हो, सीए की जर्नी में इंटेलेक्ट से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जब हम क्लास में बैठकर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है टॉपिक और आपको वो समझ नहीं आ रहा है, हमें वो सब समझ आ रहा होता है अगर हम सोलली कोई भी इंडिविजुअली कोई कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। रियल चैलेंज हमारा कहां पर आता है, जब वो सारा करिकुलम हमें एक दिन पहले पढ़ना है। नाउ दे आर नॉट टेस्टिंग योर इंटेलिजेंस, ऑल दे आर टेस्टिंग इज योर पेशेंस लेवल। आप कितना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हो अच्छे से, जब आपके पास वो पूरा करिकुलम एक साथ है। तो अब आप, और आपको पता है कल एग्जाम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अब आप कितना कामली उसको हैंडल कर पा रहे हो। और आप पढ़ के वो चले भी गए हो वहां पर, अब एग्जाम हॉल में जब दो लोग सामने डिस्कस कर रहे हैं कि तूने ये पढ़ा क्या वो पढ़ा क्या, उस टाइम आप ये स्ट्रेस नहीं ले रहे हो कि ओह माय गॉड ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया टॉपिक। आप फिर भी कामली आप फेथ प्रैक्टिस कर रहे हो कि ठीक है मैंने जो कर लिया है मुझे उस पर पूरा विश्वास है, मैं बढ़िया लिखूंगा जाके। और जिस मोमेंट आपने एग्जाम पेपर खोला और लेट से आपको पहला क्वेश्चन दिख गया कि अब आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो आप छोड़ के आए हैं, तो अब आप कितनी हिम्मत जुटाकर पेपर आगे पलट के आगे के सारे क्वेश्चन देखते हो, या आप वही पहला क्वेश्चन देखते हैं, अब आपकी हालत खराब, और जो पीछे आपने 6 महीने पढ़ाई करी थी वो सब आप भूल गए क्योंकि अब इतना स्ट्रेस ने आपको ओवर पावर कर लिया। सो ऑल द वाइल सीए जर्नी में यही टेस्ट होता है, आप कितने इमोशनली अवेयर हैं, कितना खुद के डर को समझ पा रहे हैं, और कितना चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, फेथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आसपास डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, आप फिर भी खुद के काम पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब हम समझते हैं डीपली कि ये जर्नी मुझे, इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम जो मैं क्लियर करके यहाँ से बाहर आ जाऊंगी, उस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तभी मैंने समझा कि जो मैं सीपीटी में नेहा थी और जो मैंने सीए फाइनल क्लियर किया, सीए फाइनल वाली नेहा सीपीटी वाली नेहा को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत पेसिमिस्टिक थी, वो एकदम डर जाती थी, वो दूसरों की बात पे विश्वास कर लेती थी। सीए फाइनल वाली नेहा और जिसने सीए क्लियर किया वो नेहा, शी वॉज मोर इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजन खुद लेना, मुझे क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो खुद से डिसाइड करना, और फेथ प्रैक्टिस करना कि भाई जितना पढ़े 60% भी पढ़ के गए हैं ना तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं उसमें एग्जाम। बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है वहां पर कि
आ जाएगा सब कुछ याद। सो दीज आर द इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट जो हम मिस करते हैं और सिर्फ इसी पे भागते हैं कि बस सारा पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया। Okay, thank you so much, ma'am, for sharing it such in presenting it in a such a nice way. So, my next thing that I want to ask is that do you think that participating in extracurricular projects like maybe this anthology and CA education that we are bringing on, that this can actually help a student to discover the strengths that they might not even know they had before or something? These things are absolutely game changer. They were game changer in my journey. क्योंकि जब आप स्कूल में एक सर्टेन तरह के, आप स्कूल में पढ़ाई भी करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्टिविटीज भी होती हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके शायद कोई हॉबी भी होती है, बट द मोमेंट यू एंटर इनटू सीए कोर्स या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में, हम आते ही हमारा माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करनी है। हमने आसपास से वही सुना है और वही हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आप यू मेक वन कोर्स, वन करिकुलम, योर होल लाइफ, योर होल आइडेंटिटी। तो इसके बाहर अब आप कुछ भी नहीं हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज आल्सो डूइंग। तो आपने वो किया, अब अपने एग्जाम दिए बहुत पढ़ाई करके, एंड एज आई मेंशन बिफोर कि ये कोर्स ऐसा है कि आप शायद दोबारा रिपीट कर सकते हो, उसके चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू यू विल क्लियर द एग्जाम। पर जब हम एक कोर्स के आसपास ही घूम रहे होते हैं और उससे पहले हम स्कूल लाइफ में और भी कुछ करा करते थे, वो भूल जाते हैं। दैट्स हाउ योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ एस्टीम एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गया, बस वो अब जीरो। क्योंकि अब आप अपने कोर्स के बाहर कुछ हो ही नहीं। इसका मतलब आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो आप विनर हो, नहीं हुआ तो आप लूजर हो। दैट्स हाउ यू स्टार्ट एसोसिएटिंग योरसेल्फ आल्सो। बट द मोमेंट यू एंटर इनटू समथिंग बियॉन्ड स्टडीज, कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो बट साथ में आपने कोई तो एक्स्ट्रा करिकुलर चुना, जहां पर आपने लेट्स से जैसे आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर प्रेजेंट किया, आपने बोला, एंड आपके जो बाकी पीयर्स सुन रहे हैं उनके मन में आएगा कि वैदेही कितना अच्छा बोल रही है, लाइक शी इज अ रियली गुड स्पीकर यार। और वो आपको कोई आप तक की बात आए, वो एक जो आपका बिल्कुल लॉस्ट कॉन्फिडेंस था, वो एक बार थोड़ा सा ऊपर उठता है कि ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई एम नॉट दैट बैड, आई एम नॉट दैट लूजर। दैट वॉज एग्जैक्टली द मोमेंट वॉट आई वॉज फीलिंग वेन आई डायरेक्टली इन सीए फाइनल व्हेन आई प्रेजेंटेड पेपर। क्योंकि वो पहली बार मुझे लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी तो पूरी आइडेंटिटी एसोसिएट थी सिर्फ एग्जाम से। तो वो एक किसी के लिए वो सिर्फ एक इवेंट था कि सिर्फ यार कॉन्फ्रेंस में आके बोल ही तो दिया। या मैंने एक ऐसे, हमने एक क्लब बनाया था, एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब, सीए स्टूडेंट्स ने ही सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये तो मतलब अच्छी चीज है कि जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं कि ये अच्छा बोल रही है, तो आई एम लिटिल बेटर देन रेस्ट ऑफ द पीपल। तो वो जो पहली फीलिंग आपको आती है, वहां से फिर आप नेक्स्ट चीज करते हो, फिर नेक्स्ट चीज करते हो, फिर नेक्स्ट चीज, एंड देन यू लुक बैक, आप काफी इवॉल्व हो चुके हो और अब अपने बारे में काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। So whenever you get any chance to present yourself somewhere या to participate in something, please do it. You never know वो opportunity कितना ज्यादा drastically आपके confidence को boost कर देगी। You have put it so beautifully, ma'am. I would like to go a little deeper into that as we have started a CA students community, the Winner Circle, and our first initiative is our anthology education. So, are you aware about it and what are your views on the same? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब देयर इज समथिंग लाइक बाय द सीए स्टूडेंट्स फॉर द सीए स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी में लोग मतलब एक कम्युनिटी बिल्डिंग वाला जो जैसे कॉलेजेस में होता है कि सोसाइटीज बनी है, वो ये कर रहे हैं, दैट्स हाउ दे ग्रूम। वो वैसे ही सीखते हैं लोगों से कनेक्ट करना, प्रेजेंट करना, लीड करना, इनिशिएटिव लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रूली ट्रूली कमेंडेबल जॉब यू ऑल कि आपने ऐसा कुछ करने का सोचा और सिर्फ सोच तक नहीं रह गया, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट किया। यू आर रीचिंग आउट टू पीपल फॉर दिस, दैट्स ट्रूली कमेंडेबल। तो बहुत अच्छी चीज है। और जितने लोगों से बाहर देखें, तो जैसे मैं यहाँ आकर बात करी हूँ और भी कोई अगर आप गेस्ट आते हैं, तो वो ये चीज अपने आप, अब उनके पास वो प्लेटफॉर्म है क्योंकि नॉलेज है। देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव द नॉलेज एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कुडंट एक्सेस दैट एवर, क्योंकि वो बीच में गैप जो रह जाता है कि कैसे अब हम उन्हें रीच आउट करेंगे। बट थ्रू यू नाउ दैट गैप कैन बी ब्रिज्ड कि अगर किसी के पास एक एक्सपर्ट नॉलेज है, किसी के पास दो वो मेंटरशिप स्किल्स हैं और जो स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, तो आप लोग अब वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो स्टूडेंट्स को भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपको बहुत बहुत सपोर्ट करना चाहिए ताकि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लोग और बेटर गाइडेंस उनके लिए ला पाओ। Thank you so much, ma'am. That means a lot to us that you you said such words. So finally, ma'am, when you look back, do you believe that being actively involved with other student activities actually contributes to building a winner's mindset? एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी में पीछे मुड़ के देखूं तो एक चीज जो मैंने शायद डिफरेंट करी देन लॉट ऑफ अदर सीए स्टूडेंट्स वाज कनेक्टिंग विद माय पीयर्स। क्योंकि जब मैंने, चैनल भी नहीं था तब, तो जब मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया तो उससे पहले तक हम, मतलब मैं भी अकेले रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता था कि माय प्रॉब्लम्स आर ओनली माय पर्सनल प्रॉब्लम्स और ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, मतलब फेल होने का दुख सिर्फ मैं ही महसूस कर रही हूँ और कोई नहीं महसूस कर रहा है। But when I started presenting my views over LinkedIn, connecting with people, building a community online, उससे मुझे समझ आया I'm not alone. And what I'm feeling is not rare. Every CA student feel the same. वहां से मुझे अब जो मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो कमेंट सेक्शन में आता है कि तो बहुत रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मैंने ये समझा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। हर कोई वही महसूस कर रहा है, बस उन्हें वो शब्द नहीं मिल रहे हैं बताने के। ये चीज ने ना मुझे इतना ज्यादा एम्पावर किया कि ये सिर्फ मेरे साथ ये चीज नहीं हो रही है। तो अगर सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब आई एम नॉट दैट यूनिक स्पेशल पर्सन बेचारा जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है और बहुत लोग उससे ओवरकम भी कर रहे हैं। किसी को 9 अटेम्प्ट लगे तो किसी को 10 भी लग रहे हैं और वो फिर भी क्लियर करके फिर भी वो कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इफ दे कैन सो आई कैन डू। तो ये जो कम्युनिटी में आप मिलते हो और समझते हो कि आई एम नॉट अलोन, इट एम्पावर्स यू। और अगर आप उसमें कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ शुरू करते हो अपनी साइड से, तो आपको पता चलता है कि मैं किसी को लीड भी कर सकती हूँ, मैं ऐसी बात भी कह सकती हूँ जिसको कोई सुनने के लिए तैयार है। तो जब ये सब आपको अपने बारे में समझ आता है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है और फिर वो आपके एकेडमिक्स में भी दिखता है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता है, क्योंकि वो आपका एक एटीट्यूड बिल्ड हो गया है कि आई एम नॉट समबडी स्टूपिड, I can also do good things. I can also lead people. I also have some good ideas in my mind जिसको लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको समझ रहे हैं। ये चीज आपको एम्पावर करती है आगे लाइफ में बहुत ज्यादा। So as we come to the end of this insightful session, it's my privilege to deliver you the vote of thanks on behalf of our entire team. So first and foremost, a heartfelt thank you to CA Neha Datta ma'am for your presence today. Ma'am, the clarity of your thoughts and the way you have answered every question and the knowledge, like being present at the moment, manifestation, then emotional intelligence, everything, it was just precious to all of us. I would like to also announce that once the anthology, that is the education, is published, the Winner's Circle will be providing CA Neha Datta ma'am a token of gratitude for being the TWC ambassador. And the last but not the least, I would also like to thank the Winner's Circle team for organizing this wonderful event and giving us the opportunity to learn, grow, and connect. Once again, thank you all for being here today, and let's continue to learn, grow, and uplift one another. Have a great day ahead. Thank you so much, ma'am.